Good morning, everyone. How are you all? Yes, sir. Good morning. Morning, we are Good sir. morning, Welcome. sir. Thanks a lot. How are you? I'm also fine, thank you. Beta, am I audible you all properly? Shall we Yes, sir. start the session? Yes, Yes, sir. Okay, yes. Your voice is coming properly. okay. Beta, in our last class, just we completed the chapter number 9, and today we are supposed to start a new chapter. That is the chapter number 10. Yes. Can anybody tell us the title of the chapter? Which The chapter we are going to coming read? The coming the of coming of coming of spring. spring. Okay, actually, I'm not getting your voice properly. I think there is some network glitch. So let me fix it first. So let us open the chapter. So what we have to do, first of all, we need to open the chapter. Yes, this is the chapter what we have to start today, what we have to read today. The chapter name is the coming of spring. I hope everybody is aware with the spring. Now it's time to welcome the spring in real as well. Yes. The spring is the season which comes after which season? Winter. Sir, The Winter. winter. अभी winter खत्म भी हो रहा है. winter after विंटर Yes, खत्म भी sir. हो रहा है. वी आर ऑल अबाउट टू वेलकम द स्प्रिंग. बसंत पंचमी हम मनाने भी वाले हैं. बसंत ऋतु जैसे ही शुरू होता है आपका बसंत पंचमी सेलिब्रेट करके हम मनाते हैं. And this is a festival of the joy. I think there are many festivals, there are many seasons, but out of those seasons, spring season is the most most persons would like beautiful. to have a spring season, because in this season there is a lots of fun. There is a mini festival where we have fun, like Holi is also there, and also Yes. the schools are about to open in this season. So that means everyone is welcome is trying to welcome this season. So let us read the poem. Before moving on the poem, first of all we have to read this thing that is about the poem. What is there? Spring is the season that comes between winter and summer. Spring is a season that comes between the winter and summer. That means after winter and before summer. It lasts for a short while, but it is one of the most beautiful season of the year. ये बहुत ही कम समय के लिए आता है, but it is the most beautiful season. ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीजन है पूरे साल का. क्यों पसंद किया जाने वाला है? There is a many reason behind that. It's time of joy and cheer, क्योंकि ये बहुत ही हर्षोल्लास का समय होता है. It is also the time of Holi. ये होली का भी समय होता है. It is a very colorful festival that marks the belonging of spring. What are some other things we don't in spring? क्या होता है एक्चुअल में? ना तो ठंड रहती है ना ही गर्मी रहती है. यानी ना तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान होने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड में बहुत ज्यादा स्वेटर्स भी नहीं पहनने की जरूरत है. दैट मीन्स कि दिस इज द सीजन वेयर यू मतलब एवरीबडी वुड बी हैप्पी. इवन जो ट्रीज के जो लीव्स है वो भी आने लगते हैं, जो डेज हैं वो बड़े होने लगते हैं. दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा ज्यादा समय मिलता है फॉर प्लेइंग, फॉर मीटिंग, फॉर स्पेंडिंग सम ऑफ द टाइम विथ आवर फ्रेंड्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द आवर फ्यूचर. या अपनी पढ़ाई के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं. So there is a lots of things about the spring. So let us read the poem. But first of all, we have to read this complete poem. Thereafter, one by one, I'll explain all the stanzas of this poem. Okay? Yes. Sir. So what is there in this poem? Actually, the poet, there is a actually unknown poet. Whenever we cannot find the poet of any particular poem, we write anonyms. That means unknown poet. इसका जो कौन poet है ये नहीं clear है. तो ये अज्ञात मतलब ये नहीं पता है कि who has written this poem. So that is why it is written there anonymous. So the poet wants to tell in this poem that whenever spring season comes, how the animals and plants speaks, how the peoples enjoy this season. It is very hot here in May. Actually,
there are some of the countries, let's say in the world there are some of the parts of country spring seasons come in the month of May, लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, मई जून में तो शायद समर स्प्रिंग खत्म होने लगता है ना. Yes, sir. But in many parts of the world summer is over by May. But in many parts of the world, लेकिन दुनिया के कई सारे हिस्सों में, जैसे कि इंडिया ही हो गया, समर इज ओवर बाय मे. जो समर है वो मतलब जो स्प्रिंग सीजन है वो मई तक खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है. एंड स्प्रिंग अराइव्स. Yes. कई जगह स्प्रिंग मई में पहुंचता है, कहीं पे खत्म हो जाता है, इंडिया में खत्म ही हो जाता है. अभी तो आपका जो स्प्रिंग्स है वो शुरू ही होने वाला है. Let us read a sweet little poem about how the plants and animals are telling everyone that spring is just around the corner. Now we have to read that ki how the plants and poem is telling that ki spring, the wonderful season spring has come. क्या होता है उस सीजन में, किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स और लोग आपस में बातचीत करते हैं, किस तरीके से वो खुश हो जाते हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गया. So let us read that how they are enjoying, how they are expressing their words. Oh, the sunshine told the bluebird, and the bluebird told the brook that the dandelions were peeping from the woodland sheltered nook. Then the brook was blithe and happy, and it bubbled. No, actually, there is a second stanza. In the first stanza, it is there till nook. बेटा ये दोनों यहाँ पे मिक्स करके लिख दिया गया है. यू शुड नॉट हैव टू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देयर इज अ 4 स्टैंजा इन दिस पोएम. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम ओ टू नूक. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. Nook. And the second is going to me. From then to May, the second stanza, and the third one is from here to May. here. Beta, nobody have to speak during the. 1 to 3. Beta Anupriya, just wait. Why you are interrupting? Whenever you will be asked the question, then you will need to speak. Whatever you are telling, I'm telling the same things. अगर बच्चे इस तरीके से बीच में टोकना शुरू करेंगे तो शायद हमारा ये ऑनलाइन जो सेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगेगा, because no one is knowing that who is going to speak. So if you are having any questions, you all should raise your hand. Then I'll take your name and then we can resolve the issues if is there any. So beta, in this poem what is there, actually the poet describes the beauty of nature when spring seasons come. How the poet is trying to describe. In the first stanza the poet is telling that, oh, the sunshine told the bluebird, and the bluebird told the brook that the dandelions were peeping from the woodland sheltered nook. The poet is trying to say is that during the time of spring season, जो स्प्रिंग का जो समय होता है, जो बसंत ऋतु होता है, स्प्रिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु बोलते हैं ना. तो जो बसंत ऋतु होता है, जो आपका ये स्प्रिंग सीजन होता है, एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग सीजन जो सन होता है, द सनशाइन, द रेज ऑफ द सन आर वेरी ब्राइट, और होता भी है. अभी आप बाहर निकलेंगे देन यू विल बी गेटिंग दैट कि विंटर्स में आपको मॉर्निंग में आपको शायद जो सन का जो रेज होता है, द रेज ऑफ द सन वर नॉट सो ब्राइट, थोड़ा सा हल्का ही दिखता था. बट नाउ यू वुड बी ऑब्जर्विंग दैट द रेज ऑफ द सन आर ब्राइट. इट सीम्स दैट, और ऐसा लगता है कि इट सीम्स दैट टू द ब्लू बर्ड. ये ब्लू बर्ड इज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक किसी बर्ड का नाम है. तो at the time of spring season, rays of the suns are trying to speak the bluebird that ki spring has come. इस तरीके से उसकी जो किरणें होती हैं ब्राइट हो जाती हैं कि जैसे कि वो बताना चाह रही हो कि स्प्रिंग सीजन आ गया, बसंत ऋतु आ गया. और यही नहीं, the sunshine is telling to the bluebird and bluebird is also trying to pass the same message to the brook. अब ये brook क्या है? Brook is a it is mentioned there. It is mentioned there into your book. Sir, a small stream. A small stream, a narrow stream of a water. We can say that as narrow stream of a water, which is going to meet the river, जो कि किसी particular river से मिलने जा रही हैं. Okay.
तो क्या होता है, द सनशाइन इज टेलिंग टू द ब्लू बर्ड एंड द ब्लू बर्ड इज ऑल्सो द पासिंग द सेम मैसेज टू द narrow narrow stream of a water. What they are passing, what they are trying to tell, they are trying to tell about the spring season. They are trying to say that the spring season has come. जो spring season है वो आ चुका है या आने वाला है. Okay, that the Yes. dandelions were peeping from the woodland sheltered nook. अब यही नहीं, क्या बोल रहे, they are also trying to tell that कि dandelions क्या होता है. Dandelions is the we can say this is a yellow, this is a kind of yellow flower. This is a kind of yellow flower. And peeping means looking secretly, यानी peeping मतलब एक तरीके से झांकना होता है, और झांकते मतलब वो कहीं ना कहीं चुपके से झांकते हैं लोग. woodlands means एक जंगल, एक कह सकते हैं forest. and nook Yes, sir. Forest. Yes, sir, forest. and nook is a enclave. that means कि एक तरीके से गुफा को कहते हैं या किसी रहने वाले स्थान को कहते हैं shelter यानी आश्रय. तो what they are trying to sell, what the poet want to tell through third and fourth line of the first stanza, the poet want to tell that from the corner of a forest, at dandelions flowers are also peeping. From the corner of the forest, a dandelion flowers are also peeping and showing their happiness that spring season has come. कहीं ना कहीं जो आपका जंगलों के कॉर्नर से, मतलब जंगल की किसी गुफा या किसी कॉर्नर से, कोने से कहीं वो भी झांक रहे हैं, देख रहे हैं that spring season has come. They are also trying to express their feeling. So what we can say, how we have to understand this, the third and fourth line, from the corner of the woodlands, from the corner of the forest, एक तरीके से कह सकते हैं. From the corner of the forest, the dandelions, that means the yellow flower is also peeping. They are secretly looking that, किसको देख रहे हैं, looking towards the spring season. और कहीं ना कहीं they are also trying to express that कि spring season has come, कि spring season जो है वसंत ऋतु आ गया है. So I hope the first stanza of this poem is clear. क्या कहना चाह रहा है, हर words की meaning. Is there any confusion with any of the word? No, sir. So shall we move ahead on the next stanza? In the second stanza, Yes, sir. what is there? Then the brook was blithe and happy, and it babbled all the way, as it ran to tell the river of the coming of glorious May. क्या होता है जो यहाँ पे brook की बात किया गया है? Brook means a narrow. Brook A means small narrow- stream. Yes, narrow A stream of small water. stream. जो narrow stream of water है उसकी बात किया जा रहा है. Then the brook was blithe and happy. जो आपका narrow stream of water है, ये blithe मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा खुश होना, एक तरीके से कह सकते हैं Hearted. cheerful होना. The light-hearted. light-hearted. light hearted मतलब खुश होने पे ही light hearted होगा ना. Yes, sir. Is mentioned here. Blithe means light hearted. Then Sachinda. the brook was blithe and happy. जो brook है, the narrow, जो आपका narrow stream of water है, it looks very happy and very cheerful. वो इस तरीके से वो happy है, इस तरीके से वो प्रसन्न है कि he is bubbled in all the way. वो एक तरीके से वो अपने पूरे रास्ते में, जैसे वो actually the brook was going to meet the river ना, तो river से मिलने जा रहा था, तो in there all the way वो पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं bubbling कर रहा है. So that means कि this is the way of actually the brook was trying to show their happiness as it ran to fell the river of the coming of glorious May. वो क्या कहना चाह रहा है? The bubbles, the brook, the narrow stream of water is making bubbles all the way as it ran to tell the river of coming glorious May. जो glorious May जो ये इन्फॉर्म करने जा रहा था रिवर्स को, ऐसा लग रहा था कि जो ब्रूक है, जो नारो स्ट्रीम ऑफ वाटर है, वो इस तरह से बबलिंग करते हुए जा रहा था कि जैसे वो प्रसन्नता में, खुशी में यह बिल्कुल बताने जा रहा हो कि ग्लोरियस में आने वाला है, बहुत ही शानदार मई. यानी शानदार मई के बजाय आप कह सकते हैं हम लोगों के लिए एज ए इंडियन वी कैन से दैट कि शानदार
स्प्रिंग सीजन आने वाला है, बिकॉज मई तो आपका हमारे यहाँ पे मई में स्प्रिंग सीजन नहीं आता, तो ग्लोरियस रेनी सीजन वुड बी बेटर. ठीक है. Yes, sir. पढ़ने से ये लगता है कि द पोएट, जो पोएट है वो इंडियन नहीं है, कहीं दूसरी कंट्री से है, बिकॉज द कमिंग ऑफ ग्लोरियस मई के बजाय द कमिंग ऑफ ग्लोरियस मार्च हम लोग बोल सकते थे, क्योंकि मार्च में ही हमारे यहाँ पे स्प्रिंग, फरवरी Spring season. Fab and at the beginning of the March we are we have rainings, we have a spring season in India. रेनी सीजन का क्यों हमें रेनी सीजन बार बार मेरे कुछ क्या आ रहा है, let's say. So moving ahead on the third stanza, is there any confusion with any words in the from the second stanza? No, No, sir. Soon the river told the meadow. Soon the river, जल्दी ही जो रिवर है, जैसे ही लेट्स से कि द जो ब्रुक है जब रिवर्स को इन्फॉर्म करती है, in the same way immediately the river is also trying to speak to the meadow. Meadow is the green grass field. That means yes, sir. तो जिसको भी इंफॉर्मेशन जहां कहीं से भी मिल रहा है, they are trying to speak to other person that और क्या क्या बताना चाह रहे हैं, all the persons, all the animals, trees or things are trying to tell that the spring season has come, the spring season is about to arrive. Close. So soon the river told the meadow and the meadow told the bee. In the third stanza, what is there? The poet want to tell that everyone, nature is telling about the arrival of spring season. The river, वो इस तरीके से बता रहे हैं, the river tells to the field of grass, and field of grass is also says to the pretty which had started to coming out on the old trees. Soon the river told the meadow and the meadow told to the bee. जो ये meadow, bee means आपको पता है, So मधुमक्खी. मधुमक्खियां, अरे Yes, मधुमक्खियां sir. कहीं ना कहीं, मधुमक्खियां भी, मधुमक्खी. that the tender birds, ये मधुमक्खियों से क्या कहते हैं, that the tender birds were swelling on the old chestnut tree. तो tender birds, tender मतलब एक तरीके से नाजुक कह सकते हैं, यानी एक तरह से जो pretty birds, birds यानी कली जिसको आप कहते हैं, तो tender birds were swelling, यानी swelling means we can say that कि just coming out, एक तरीके से बाहर आ रहे हैं. Okay, they started to come out. Yes. An old chestnut tree, chestnut is a kind of fruit, शायद इंडिया में नहीं होता, क्योंकि chestnut is a kind of fruit. So what they are telling, the river told to the meadow and the meadow told to the bee. क्या कहती है, that the tender birds were swelling on the old chestnut tree. यानी through this line, through this couple of line, also they are trying to say that the spring season has come, the spring season is coming. स्प्रिंग सीजन आने का इसको कई सारे वे में आप बता सकते हैं कि चलो वृक्ष में, लेट्स से कि in different way we can tell that कि there are leaves coming out from the trees, new leaves are coming out in the trees. That means कि नई leaves कब आती हैं trees में, new leaves when come out from the trees Spring season. in the spring season. Sir, when sun is rise. That means कि in this way that कि the birds, जो आपके pretty birds हैं, they are coming out, they have started to coming out on the old chestnut tree. Through this message the river is also telling, the meadow is also telling to the bee. और फिर ऐसे में क्या होता है, and the bee shook off its sleep. और ऐसे में जब वो जो bee एक तरीके से यहाँ पे assume किया गया कि वो सोया हुआ था, वो नींद से जगता है, and speed each yellow wings, और अपने जो yellow wings है, अपने येलो पंख है, उसको एक तरीके से उड़ान भरता है, टू टेल, टू इन्फॉर्म ऑल द फ्लावर्स, टू इन्फॉर्म ऑल द फ्लावर्स, ईच एंड एवरी फ्लावर्स, क्या बताने के लिए, अबाउट द स्प्रिंग सीजन. So what is happening in the fourth stanza, and the bee shook off its sleep and spread each yellow wing as it flew to tell the flowers of the coming of spring. ऐसे में जब ये आपका जो मिडो है वो बी को इन्फॉर्म करता है दैट की टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट, आर स्टार्ट टेंडर बर्ड्स यानी जो प्रेटी बर्ड्स हैव स्टार्टेड टू कमिंग आउट. एट दैट टाइम बी शॉक ऑफ इट्स स्लीप, अपनी नींद से एक तरीके से जगता है, एंड स्प्रेड ईच येलो विंग्स एंड फ्लू टू टेल ऑल द
flowers, each and every flowers that spring is coming. The spring is coming. So थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा भी एक साथ ही क्लियर करने की कोशिश की गई. इज देयर एनी कंफ्यूजन विथ एनी ऑफ द वर्ड्स? किसी भी वर्ड्स की मीनिंग आप सभी को ना आती हो, ना समझ में आ रहा हो? आई एम रेडी टू. मैं एक बार फिर से बता सकता हूं. क्यों बेटा? इज देयर एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. एक बार कोई मुझे समझाएगा हर स्टैंजा का क्या क्या मतलब है? फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, विथ वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन करके. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन दिस वन? एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने. नेक्स्ट टाइम आप सभी को करना रहेगा. जस्ट वेट. In the first stanza, the poet wants to tell. In the first stanza, the poet wants to tell that during the spring season के दौरान क्या होता है? Everyone looks very happy. जो everywhere, everyone looks very happy. और उस happiness में क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है. The sunshine towards the bluebird. सनशाइन जो सूरज की किरणें हैं वो ब्लू बर्ड से बोल रही होती हैं. ब्लू बर्ड्स जो है वो ब्रुक से बोल रहे होते हैं. ब्रुक क्या है मैंने आपको बताया, स्मॉल नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर. नॉट स्मॉल, इट्स अ नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर. तो नहीं हर कोई हर किसी से बता रहा होता है अबाउट द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन. हाउ दे आर टेलिंग दैट द डैंडलस वर पीपिंग फ्रॉम द वुडलैंड्स शेल्टर्ड नूक. जो डैंडलस यानी येलो कलर के फूल्स हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, दे आर पीपिंग, दे आर सेक्रेटली लुकिंग इनटू द टुवर्ड्स द स्प्रिंग सीजन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. तो everyone is trying to speak, everyone is trying to express that the spring season is coming in the first stanza. So here just the poet wants to describe the poet wants to trying to tell that how the spring season is treated during the how the spring season is treated by the flowers and animals and other creature of the nature. Okay, पहले स्टेंजा में क्या है समझ में आया? कौन किसको बता रहा है? सब लोग एक दूसरे से बता रहे हैं कि स्प्रिंग बस आ ही रहा है. तो इसका इतना महत्व है कि स्प्रिंग की ही बातें कर रहे हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग सीजन को कितना महत्व दिया जाता है लोगों द्वारा. ओके, Yes, sir. देन द ब्रूक वाज, अब सेकेंड स्टैंजा में भी सेम वही चीजें कंटिन्यू होती है. देन द ब्रूक वाज ब्लाइथ एंड हैप्पी. जो ब्रूक है, जो ब्रूक को पता चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है. एक तरीके से लाइट हार्टेड होता है. यहाँ पे ब्लाइथ मींस लाइट हार्टेड, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि द ब्रूक वाज वेरी चीयरफुल एंड हैप्पी. बहुत ही ज्यादा चीयरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है. एंड इस तरीके से वो रिएक्ट करता है कि जैसे मतलब ड्यूरिंग द ऑन द वे एज द ब्रूक वाज गोइंग टू मीट द रिवर्स. जो क्या होता है, जो आपका नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है वो कहीं ना कहीं जाके रिवर से मिलता है. तो ड्यूरिंग द वे इट स्टार्टेड बबलिंग ड्यूरिंग ऑल द वे. जैसे और इस तरीके से बबल कर रहा था कि जैसे वो इन्फॉर्म करना चाह रहा हो, रिवर्स को बताना चाह रहा हो कि द स्प्रिंग हैज कम, द ग्लोरियस मे हैज अराइव्ड. ओके, तो यहाँ पे भी इस तरीके से हाउ द ब्रूक वाज रिएक्टिंग, हाउ द ब्रूक वाज ट्राइंग टू स्पीक टू द रिवर अबाउट द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन, ये सेकंड स्टैंजा में बताने की कोशिश की गई है. ये क्लियर है? Yes, sir. इन द थर्ड स्टैंजा जैसे अब जो आपका ब्रूक है रिवर को बताएगा, तो जैसे रिवर को पता चलता है, सो व्हाट द रिवर विल डू, रिवर आल्सो विल बी टेलिंग टू द मीडो. जो रिवर है वो ग्रीन मतलब प्लेन एरियाज को एक तरीके से बताता है. Soon the river told the meadows and the meadow told the bee.
जो आपका जैसे ही रिवर्स को पता चलता है, ये ग्रीन फील्ड्स यानी मतलब एक कह सकते हैं एक बड़े ग्रीन फील्ड्स एरियाज को एक तरीके से इन्फॉर्म करता है। और क्या इन्फॉर्म करता है, और जो ये मीडो होता है, ग्रीन ग्रास फील्ड जो होता है, इट इन्फॉर्म्स टू द बी, ये बीज को इन्फॉर्म करता है। क्या इन्फॉर्म करता है, दैट द टेंडर बर्ड्स वर स्वेलिंग ऑन द ओल्ड चेस्टनट ट्री। जो टेंडर बर्ड्स हैं, द प्रेटी फ्लावर्स, जो प्रेटी बर्ड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड टू कमिंग आउट ऑन द चेस्टनट ट्री। ये इस तरह के फ्रूट्स में, यानी पर्टिकुलर कोई, दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रूट, तो इस पर्टिकुलर फ्रूट्स के किसी एक पेड़ की बात किया गया है यहाँ पे, कि पेड़ों पर कहीं ना कहीं आपकी कलियां खिलने लगी हैं, यानी फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो थर्ड स्टैंजा में भी कहीं ना कहीं स्प्रिंग सीजन से ही रिलेटेड बातें लिखी गई हैं कि हाउ द रिवर्स इज टेलिंग टू द मेडो, एंड मिडल जो मेडो है वो बीज से कैसे एक्सप्रेस करता है कि स्प्रिंग सीजन कैसे आ रहा है। ओके, in at the last Yes. stanza, in the last stanza the poet also has tried to speak that कि how the other things, how the bees, जब bees को पता लगता है तो how the bee what is the reaction of the bees, and how the bee is telling to the other flowers, how the bee is telling to the each and every flowers about the coming of spring। कैसे बताता है, एक तरीके से ये इट्स ऐसा अज्यूम किया गया है कि बी सो रहा होता है और जैसे ही वो जो मेडो है वो बी को बताता है, द बी शॉक ऑफ इट्स स्लीप, तुरंत ही वो अपनी नींद से जागता है, एंड स्प्रीड ईच येलो विंग्स एज इट फ्लू टू टेल द फ्लावर्स, और ये एक तरीके से अपने जो पंख हैं उसको स्पीड करता है, फैलाता है, एंड फ्लू, और उड़ता है, टू टेल टू ऑल एंड ईच फ्लावर्स, टू ईच एंड एवरी फ्लावर, सभी फ्लावर्स को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, अबाउट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन है उसके आने के लिए, उसके अराइवल के बारे में बताने के लिए वो फैलता है, मतलब उड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। इन दिस पोएम आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक्चुअली दिस पोएम सेज द Yes. नेचर मेक्स हिज डेज, नेचर शोज मेनी ब्यूटीफुल Yes. थिंग्स टू अस। जो नेचर है हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें कहीं ना कहीं दिखाता है, शो भी करता है। We should spend some time with nature to see their beauty। हमें कहीं ना कहीं नेचर के साथ थोड़ा बहुत समय भी बिताना चाहिए, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, समझने के लिए। So in the fourth stanza, the poem the poet want to say that कि how the nature makes his day, जो नेचर है वो अपना दिन कैसे बनाता है, how they started to start their days, how they gives a new vision and show the new side of a life। एक तरीके से पतझड़ के बाद जब पत्तियां आती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि देयर इज अ न्यू स्टार्टिंग, और ऐसा हम लोग के यहाँ पे माना भी जाता है, जो बसंत ऋतु होता है एक तरीके से नई शुरुआत होती है, नई बिगनिंग होती है। सो आई होप हम लोग बसंत ऋतु, इस पोएम जो बसंत ऋतु से, स्प्रिंग सीजन से हम लोग भी बहुत कुछ ना कुछ सीखेंगे, और उसको अपने लाइफ, मतलब बसंत ऋतु से सीखते हुए हम लोग भी अपना एक नई शुरुआत करेंगे। आपके स्कूल्स भी खुलने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ मार्च इन द नेक्स्ट मंथ। सो ऑल्सो वी वुड बी स्टार्टिंग न्यू डे इन दिस स्प्रिंग सीजन। सो आई होप यू ऑल माइट अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इज देयर, डिड यू अंडरस्टूड और नॉट, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Now you all need to read the poem and answer the question based on this. After this poem there is a questions, there are many questions। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, so now you all need to read this poem। अब ये पोएम आपको अपने मर्जी से पढ़ना है, सभी की मीनिंग्स बता दी गई है। एक बार आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ना समझ में आए। लेकिन इस पोएम बहुत ही आसान शब्दों में है, बस थोड़ा सा 2-4 वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका सीधा मीनिंग निकालेंगे। ऐसा नहीं है सीधा आप लाइन बाय लाइन अर्थ आप निकालते जाएंगे, जो कहना चाह रहा है पोएम वो सीधा आपके सामने ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लाइन को किसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ और मीनिंग निकालना है, ऐसा नहीं है। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द, अगर कोई वर्ड्स ऐसा है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वर्ड्स। सारे मीनिंग्स मैंने फिलहाल बता ही दिए हैं, यू कैन लुक इनटू द वीडियो। तो उससे आप ही पूरा एक पोएम अपनी मर्जी से आप समझ जाएंगे, और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहेंगे, देन इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल टू राइट द आंसर based on this poem।
So I hope you all can, you would be able to write the answer on this. You would be able to write the answer of this Sir, what is the chapter. meaning of shelter? क्या हुआ बेटा? Sir, what is the meaning of shelter? शेल्टर मीन्स बेटा आश्रय होता है एक तरीके से रहने का स्थान, ठीक है? Sarad. हाँ, बट Sir. where is this one? Yes, from the woodland sheltered knock, बेटा, that the dandelions were peeping from the woodland sheltered knock. जो dandelions थे, dandelions is a kind of is a types of yellow flowers. Daisies. हाँ, डेजी नहीं कह सकते, हाँ yellow flower daisy आप मान लीजिए. So this is the type of yellow flower. They were trying to peeping. They were trying to looking secretly towards the spring season. वो एक तरीके से वो अपनी जगह से, जंगल से, फॉरेस्ट से वो एक तरीके से झांक रहे थे, जंगल के किसी कोने से वो देख रहे थे. And they were trying to express their happiness. कहीं ना कहीं उनका झांकने का मतलब वो फिलहाल कहीं ना कहीं they were trying to express their happiness that spring season was coming. Okay. Yes, sir. So what Yes, sir. meaning? Yes, someone, what do you want to ask? Sir, what meaning सन कर दीजिएगा. वर्ड मीनिंग बेटा मैंने इसमें सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बता दिया है, इंग्लिश मीनिंग दिया है, आप सभी को. Sir, chapter number 7. So chapter number 7. चैप्टर Sir, नंबर Sir, chapter number 9 की sir. Sir, 9 की. Sir, 9 की. बेटा वन मोर थिंग, Yes, sir, chapter 9 की. वन मोर थिंग, जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको हिंदी में, इंग्लिश में, देन व्हाई यू आर नॉट राइटिंग द हिंदी मीनिंग ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन. अभी मैंने ये चैप्टर नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन किया हिंदी में. यू शुड हैव टू राइट ऑल द मीनिंग्स. यही सारी चीजें मैं आपको लिख करके एक लिस्ट बना के भेजूं, फिर आप लिखेंगे. डू यू वांट लाइक दिस? व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? जब एक्सप्लेनेशन के समय आप सभी को जो भी आपको डिफिकल्ट मीनिंग लगे वो आपको लिखना चाहिए. फिलहाल मैं आप सभी को भेज दूंगा, दैट इज द अनदर थिंग. उसको टाइपिंग फिलहाल मुझे लिख करके सर को देना पड़ेगा. सर वुड बी टाइपिंग द ऑल द वर्ड्स, दे वुड बी मेकिंग इट इन द पीडीएफ फॉर्मेट एंड वुड बी सेंडिंग टू यू. बट ऑल्सो यू शुड हैव टू राइट द मीनिंग्स ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन. आप अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक में ही यू ऑल कैन राइट. लेट्स से ब्लू वर्ड्स मीन्स नहीं पता है तो लिख लीजिए यहाँ पे पेंसिल से. आपका यू कैन राइट. यस अनुप्रिया. सर अपने आप राइट कर लेंगे वर्ड मीनिंग. हाँ, वर्ड मीनिंग आप लोग Yes, बेटा अपने मर्जी से लिखेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं पोएम्स पे आप ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं. नहीं तो वैसे लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे अगर लाइन से तो शायद वो समझ में नहीं आएगा, वो आपको रटना पड़ेगा और भूल भी जाएंगे. बट अगर आप पोएम्स में इस तरीके से आप समझ के करते हैं तो आपको मेमोराइज, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोराइज हो जाएगा. Yes, sir. अभी इसमें मैं आपको Yes, वर्ड मीनिंग अगर दूंगा तो वर्ड मीनिंग क्या दूंगा? स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु लिखूंगा. सनशाइन मतलब सूरज की किरणें. अब ब्लू वर्ड मतलब नीले कलर की पक्षी. ब्रुक मीन्स लिखूंगा नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर, या अब इसी का हिंदी भी लिख सकता हूँ वुडलैंड्स मीन्स फॉरेस्ट या जंगल लिखूंगा. नुक मीन्स लिखूंगा, नुक मीन्स क्या लिखूंगा? किनारा. Sir, corn. कौन सर? नुक मीन्स कॉर्नर लिखा जाएगा एक तरीके से, या फिर गुफा एक तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब जहाँ रहने की स्थान है. तो इस तरह की जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली एज पर द पोएम वो क्लियर नहीं हो पाती है. फिर वहां से आप लर्न करेंगे, फिर पोएम में अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो शायद वो मुश्किल होगा. तो व्हाट Yes, sir. आप यहाँ पे प्रॉपरली जैसे भी आप 2-4 इंग्लिश या हिंदी में जैसे भी लिखना चाहें, जिस तरह आपको मेमोराइज कर सकें, इस तरह मीनिंग आप यहाँ पे लिखें. और फिर इस स्टैंजा को आप अपने, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन द सेम वे ऑल्सो यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टैंजा. और पोएम्स को पढ़ना आसान है, उसको समझाना, एक्सप्लेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो डिफिकल्ट ये इसलिए है क्योंकि आप कई सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं जानते होंगे. जो मीनिंग जानते होंगे दैट वुड, अगर आप इसको डिक्शनरी में चेक करेंगे तो नुक मीन्स क्या होता है? नुक में से आप पाएंगे गुफा. तो अब यहाँ पे गुफा कैसे बोलेंगे? दैट द डैंडल्स वर पीपिंग फ्रॉम लैंड शेल्टर मतलब आश्रय पाएंगे. वुडलैंड फॉरेस्ट पाएंगे. तो एक एक मीनिंग अगर इस तरह लिखेंगे तो शायद इसको फ्रेम कर पाना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए. तो बेहतर ये है कि आप ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो देखें. इसीलिए आपकी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया जाता है. आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिकली सारी मीनिंग आपको लर्न हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं. Yes, sir. और ऐसे में आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका पोएम आपको हमेशा लर्न भी रहेगा. इन केस इफ यू आर मतलब लेट्स से इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस
रिगार्डिंग दिस पोएम, तो आप आसानी से अपनी मर्जी से आप अपने आंसर दे भी पाएंगे, नहीं तो फिर आप आंसर के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे. So your session is about to be end. So is there any questions? No, sir. No, sir. You all are supposed to write the answer of the A and B section of Get Going. A, B, C 3 sections हैं Yes. Get Going में. तीनों sections के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा. सर ए सेशन में I would be discussing the answer. Sir, सीधा नहीं राइट करते. Sir, सीधा नहीं, let sir, us B. go beyond the poem. हाँ. Let us go beyond the poem नहीं लिख पाएंगे. सर नहीं, हम लोग राइट करते. सर ए और बी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और I'll help you all to write the answer of this question. Okay.